Assalamu alaikum aspirants. Today you will solve targeted questions for CSS MPT, and this session will train your brain to think fast and stay accurate under pressure. Every question will test a key concept that matters in the real exams, so stay focused, know your weak areas and build confidence with each correct answer. सो हम इस लेक्चर को इस्लामिक स्टडीज़ के सेक्शन से स्टार्ट करेंगे और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इस्लाम। इस्लाम का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सबमिशन टू गॉड। द वर्ड इस्लाम राइज फ्रॉम द अरेबिक रूट वर्ड इस्लाम एंड विच मीन्स पीस, प्योरिटी, सबमिशन एंड ओबीडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ फेथ आर देयर इन इस्लाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी में 6। The 6 articles of faith in Islam include belief in Allah, His angels, His books, His messengers, and the day of judgment and divine predestination. Next question हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, which angel brought the first revelations to Prophet Muhammad peace be upon him। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी में हज़रत जिब्राइल was responsible for delivering the divine revelations from Allah to Prophet Muhammad peace be upon him over 23 years. The first revelation occurred in the cave of Hira during the month of Ramadan. Next question, who was the second caliph in Islam? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हज़रत उमर bin al-Khattab succeeded Abu Bakr as the second rightly guided Khalifa and is known for his justice and expansion of the Islamic empire, and his Khilafat lasted from 634 to 644 CE. So next question है, what is the opposite of Tawheed in Islam? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी में शिर्क। Tawheed emphasizes the absolute oneness and uniqueness of God, while shirk involves associating partners with God, which is the greatest sin in Islam. Next question, in which year did the hijrah or migrations to Medina occur? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी में 622 Common Era. The hijrah marks the migration of Prophet Muhammad peace be upon him and his followers from Mecca to Medina to escape persecution, and this event in 622 Common Era serves as the starting point of the Islamic calendar. इस्लामिक स्टडीज़ के सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम। तो होली बुक ऑफ इस्लाम है कुरान। कुरान इज कंसिडर्ड द फाइनल एंड अनएल्टर्ड रेवलेशन फ्रॉम अल्लाह रिवील्ड टू प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सूरत आर देयर इन द कुरान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी में 114। द कुरान कंसिस्ट ऑफ 114 सूरा आर चैप्टर्स वेरिंग इन लेंथ, with Surah Al-Baqarah being the longest and Surah Al-Kawthar the shortest. So these surahs were revealed in Makkah and Medina over 23 years. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ज़कात। ज़कात क्या है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी में ओब्लिगेटरी चैरिटी। Zakat is one of the 5 pillars of Islam, requiring Muslims to give 2.5% of their accumulated wealth annually to those in need. And next question, who is known as the seal of the prophets। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज कॉल्ड द seal of the prophets because he is the last messenger sent by Allah in completing the line of prophethood. Question number 11, what is the significance of the battle of Badr। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए के अंदर, फर्स्ट मेजर बैटल इन इस्लाम। द बैटल ऑफ बदर इन 622 कॉमन एरा वाज द फर्स्ट मेजर confrontation, and where 313 Muslims defeated a large force. It boosted Muslims' morale and is seen as a divine victory. So next question है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, what does hadith mean। hadith का मतलब है saying and actions of the Prophet Muhammad peace be upon him। Hadith refers to the recorded sayings, actions and approvals of Prophet Muhammad and serving as the primary source of Islamic guidance after the Quran, and they are classified based on authenticity, with Sahih collections being the most reliable. क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टाइम्स अ डे टू मुस्लिम्स परफॉर्म सलात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 5। मुस्लिम्स आर ओब्लिगेटेड टू परफॉर्म 5 डेली प्रेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मंथ ऑफ फास्टिंग इन इस्लाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी के अंदर, रमदान इज़ द 9th month of the Islamic lunar calendar and during which Muslims fast from dawn to sunset as an act of worship and self-discipline. क्वेश्चन नंबर 15 है, ड्यूरिंग हुज खिलाफत वाज द कुरान फर्स्ट कंपाइल्ड इनटू बुक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए के अंदर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द फर्स्ट खलीफा इनिशिएटेड द कंपाइलेशन ऑफ द कुरान टू प्रिजर्व इट आफ्टर मैनी मेमोराइजर्स डाइड इन बैटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इजमा इन इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंसेंसस ऑफ स्कॉलर्स। इजमा इज वन ऑफ द 4 सोर्सेज ऑफ इस्लामिक law representing the unanimous agreement of qualified scholars on a legal issue. Next question, question number 17. What is the Kaaba? Kaaba क्या है? The house of God in Makkah. The Kaaba is a cube-shaped structure in the Grand Mosque of Makkah, built by Prophets Ibrahim and Ismail, serving as the Qibla for prayers. Question number 18. What is Hajj in Islam? तो हज है obligatory pilgrimage to Makkah. So Hajj is the 5th pillar of Islam, an obligatory pilgrimage to Makkah performed during Zil Hajj for those who are physically and financially able. Next question, question number 19. Who was the wife of the Prophet Muhammad, peace be upon him, known as the mother of the believers? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी के अंदर, all of them. All wives of the Prophet Muhammad, peace be upon him, are honored as mothers of the believers in the Quran, including Hazrat Khadija, Hazrat Aisha, and others. Next question, what is the concept of jihad primarily about? तो इसका सही जवाब है struggle in the way of God. Jihad primarily means starving or struggling in the path of Allah, encompassing personal self-improvement, defending faith, and just warfare as a last resort. So it is often misunderstood but emphasizes ethical conduct and inner purification. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं उर्दू सेक्शन के क्वेश्चन को, और इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है कि बड़ा का मुतजाद लफ्ज़ क्या है? छोटा, लंबा, मोटा या पतला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशी का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? तो खुशी का मतलब है मुसरत, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, जुमला मुकम्मल करें, वो स्कूल जा रहा है की तरफ से में पर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए के अंदर, वो स्कूल की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आग भड़काना मुहावरे का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है फसाद बर्पा करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, दुरुस्त इमला मुंतखब करें। तो तालीम जो यानी ऑप्शन ए के अंदर है, ये दुरुस्त इमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, गरीब का मुतजाद लफ्ज़ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए के अंदर, अमीर। गरीब का मुतजाद लफ्ज़ है अमीर। क्वेश्चन नंबर 27, इल्म का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? जहालत, दानिश, तारीकी या बेवकूफ़ी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी के अंदर, दानिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जुमला दुरुस्त करें, मैंने किताब पढ़ा, मैंने किताब पढ़ा, मैंने किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ा या किताब ने मैं पढ़ा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी के अंदर, मैंने किताब पढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आंखों का तारा मुहावरे का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ऑप्शन बी, लाडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुस्त इमला मुंतखब करें। तो यहाँ पर जो वर्ड ऑप्शन ए है मिसाल, ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सख्त का मुतजाद लफ्ज़ क्या है? तो यहाँ पर सख्त का मुतजाद लफ्ज़ है ऑप्शन ए के अंदर, नरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? यानी अमन का मतलब क्या है? जंग, सलामती, फसाद या लड़ाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी में, सलामती। क्वेश्चन नंबर 33 है, जुमला मुकम्मल करें, बच्चे खेल डैश रहे हैं से, में, पर और को? तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे, बच्चे खेल कूद रहे हैं, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ काटना मुहावरे का मतलब क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी के अंदर, खयानत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, दुरुस्त इमला मुंतखब करें, हुकूमत। तो हुकूमत जो ऑप्शन ए के अंदर है, वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात का मुतजाद लफ्ज़ क्या है? तो रात का मुतजाद लफ्ज़ है दिन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, दुरुस्त का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? तो दुरुस्त का दोस्त का मतलब है, दोस्त का मुतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? दुश्मन, यार, मुखालिफ या हरीफ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुमला दुरुस्त करें, वो घर जा रही था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो घर जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश सेक्शन से, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द सिनोनिम्स ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या है? स्कैर्स, प्लेंटीफुल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी के अंदर, प्लेंटीफुल। अबंडेंट मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ समथिंग, लाइक प्लेंटी। Plenty has the same meaning, so it is the synonym. So next question, question number 2 हमारे पास है, what is the synonyms of amiable? तो amiable का मतलब क्या है? amiable का मतलब है ऑप्शन सी, hostile, ठीक है। amiable means friendly and nice to others, and hostile is the opposite, meaning unfriendly or angry. तो यहाँ पर इसका जो अगर हम मीनिंग की बात करें, तो इस amiable का मतलब फ्रेंडली है, और इसके अपोजिट वर्ड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर है ऑप्शन सी के अंदर, hostile.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट द सेंटेंस शी डू नॉट लाइक एप्पल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब है, शी डज नॉट लाइक एप्पल। द सेंटेंस हैज अ मिस्टेक विद डू नॉट फॉर शी, सो इट शुड बी डज नॉट बिकॉज शी नीड्स द राइट वर्ब फॉर्म, सो दिस फिक्स द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्वेश्चन बी जो है वो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स ऑफ फ्रॉम विद और बाय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए के अंदर अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड इज फॉलोड बाय ऑफ व्हेन टॉकिंग अबाउट फेयर एंड दिस इज अ कॉमन प्रोपोजिशन रूल इन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर जो वर्ड है ऑप्शन सी अकोमोडेशन, इसके स्पेलिंग ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या है, तो कॉशियस का मतलब है ऑप्शन बी प्रूडेंट। Cautious means careful to avoid danger and prudent means the same like being wise and careful. नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का यहाँ पर अपोजिट वर्ड बताना है, तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो ऑप्शन ए के अंदर है लेजी। डिलीजेंट मीन्स वर्किंग हार्ड एंड केयरफुल एंड लेजी इज द अपोजिट मीनिंग नॉट वांटिंग टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट द सेंटेंस द न्यूज़ आर गुड। द न्यूज़ इज गुड ऑप्शन बी में है, द न्यूज़ वर गुड ऑप्शन सी है, द न्यूज़ आर गुड्स एंड ऑप्शन डी है द न्यूज़ इज गुड। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही जवाब है, द न्यूज़ इज गुड। न्यूज़ इज सिंगुलर सो इट टेक्स इज नॉट आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, शी इज गुड डैश मैथमेटिक्स इन एट ऑन और विद। तो यहाँ पर है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है एट, ठीक है। Good at is used for skills like math and it shows ability in a subject. Question number 10, idioms break the ice means। तो इस idiom का मतलब क्या है, इसका मतलब है to start a conversation, ठीक है। break the ice means to start talking in a group. It helps when people are shy and it does not mean breaking real ice. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, synonyms of eloquent। eloquent का मतलब क्या है, साइलेंट, आर्टिकुलेट, म्यूट और इनकोरेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब है आर्टिकुलेट, ठीक है। एलोक्वेंट मीन्स स्पीकिंग वेल एंड क्लियरली, आर्टिकुलेट मीन्स द सेम गुड विद वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का अपोजिट वर्ड है यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्सपेंड मीन्स टू मेक बिगर एंड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टू मेक स्मॉलर, सो द रेस्ट मीन टू ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट द सेंटेंस नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, neither the teacher nor the students were present when nor joins subjects the verb matches the closer one. Students is plural so were is right. This is a rule for compound subjects. Next question, fill in the blanks. He arrived dash time for the meeting on, in, at or by। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब है on. He arrived on time for the meeting. On time means not late. It is used for being punctual and other words like in are for different times. क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर है एम्बेरसमेंट का ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है डेलिकेट, ठीक है। ऑप्शन बी, फ्रजाइल मीन्स इजी टू ब्रेक एंड डेलिकेट मीन्स द सेम लाइक वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एंटोनिम्स ऑफ जनरस। जनरस का यहाँ पर अपोजिट वर्ड है ऑप्शन ए के अंदर स्टिंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट द सेंटेंस आई हैव वेंट टू द स्टोर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है, आई हैव गॉन टू द स्टोर। हैव गॉन इज द राइट पास्ट फॉर्म, वेंट इज सिंपल पास्ट नॉट विद हैव, सो दिस इज परफेक्ट टेंस रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, proposition and idioms, fill in the blanks. She is interested dash learning French in, on, at, with। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है इन, ठीक है। इंटरेस्टेड इन इज यूज फॉर हॉबीज और एक्टिविटीज एंड इट शोज व्हाट यू लाइक टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम्स हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी के अंदर टू बी एग्जैक्टली राइट। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट एंड इट इज लाइक बीइंग स्पॉट ऑन, नॉट अबाउट रियल नेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सिनोनिम्स ऑफ हैस्टी। हैस्टी का मतलब है यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर रैश। हैस्टी मीन्स डूइंग थिंग्स टू फास्ट एंड रैश मीन्स द सेम विदाउट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम्स ऑफ स्टाइल। स्टाइल का यहाँ पर अपोजिट वर्ड है ऑप्शन ए फ्रेंडली। स्टाइल मीन्स नॉट फ्रेंडली एंड फ्रेंडली इज अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट द सेंटेंस ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ बुक। इट इज सिंगुलर सो हैज इज राइट, इवन विद बॉयज it is singular, so this is a rule for each. Next question, fill in the blanks. The book is dash the table on, in, at or by। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए on. On the table means placed above it. It is a
common phrase for location. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का यहाँ पर मतलब क्या है? इनक्रेडिबल का मतलब है हार्ड टू बिलीव एंड अनबिलीवेबल मीन्स द सेम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, एंटोनिम्स ऑफ जॉयफुल। जॉयफुल का यहाँ पर अपोजिट वर्ड बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब है सैड। जॉयफुल मीन्स हैप्पी एंड सैड इज द अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द सेंटेंस शी सिंग्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब है शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव बट वी नीड एडवर्ब ब्यूटीफुली एंड इट डिस्क्राइब्स हाउ शी सिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, fill in the blanks. He is allergic dash nuts to, with, from or on. तो यहाँ पर है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। द ही इज एलर्जिक टू नट्स। एलर्जिक टू इज द राइट फ्रेज फॉर रिएक्शंस एंड इट मीन्स सेंसिटिव टू समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम पीस ऑफ केक मीन्स। तो पीस ऑफ केक का मतलब है समथिंग ईजी, ठीक है। पीस ऑफ केक मीन्स वेरी ईजी, लाइक नो प्रॉब्लम एट ऑल, नॉट अबाउट रियल केक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम्स ऑफ कीन। कीन का यहाँ पर मतलब है ऑप्शन बी के अंदर ईगर, ठीक है। कीन मीन्स वेरी इंटरेस्टेड एंड ईगर मीन्स द सेम, एक्साइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम्स ऑफ लिथर्जिक। लिथर्जिक का मतलब है स्लो एंड टाइड एंड एनर्जेटिक इज अपोजिट फुल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम है ऑप्शन ए के अंदर एनर्जेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द सेंटेंस द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन द इशू। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। द कमेटी इज डिवाइडेड ऑन द इशू, ठीक है। Committee is singular group, so is even if people disagree. Next question है fill in the blanks. We will meet dash noon at, on, in or by. तो यहाँ पर है ऑप्शन ए इसका सही जवाब, at. We will meet at noon. At noon means exactly at 12 p.m. It is a specific time. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अकरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या है? तो यहाँ पर है ऑप्शन बी प्रिसाइज, ठीक है। मेटिकुलस मीन्स वेरी केयरफुल विद डिटेल्स एंड प्रिसाइज मीन्स द सेम, एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम्स ऑफ नोटोरियस। नोटोरियस का यहाँ पर अपोजिट वर्ड है ऑप्शन सी के अंदर रेपुटेबल, ठीक है। नोटोरियस मीन्स फेमस फॉर बैड थिंग्स एंड रेपुटेबल मीन्स गुड रेपुटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द सेंटेंस ही रन फास्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ही रन्स फास्ट, ठीक है। रन शुड बी रन्स फॉर प्रेजेंट टेंस विद ही एड एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks. She apologized dash her mistakes for, to, on, with. तो यहाँ पर है ऑप्शन ए for, ठीक है। She apologized for her mistakes. Apologize for means saying sorry about something and it shows what you are sorry about. Next question, idioms bite the bullet means. Bite the bullet का मतलब है to face a difficult situation bravely, ठीक है। Bite the bullet means to do something hard bravely, like face the pain. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का यहाँ पर मतलब है ऑप्शन बी के अंदर आउटडेटेड, ठीक है। ऑब्सोल्यूट मीन्स ओल्ड एंड नॉट यूज्ड एनीमोर, आउटडेटेड मीन्स सेम। सो जनरल एबिलिटी सेक्शन, we are not discussing the general ability section in this lecture. All its questions have been solved step by step in the PDF and you can download the PDF from the description of this video. It is better to solve these questions instead of just reading them. सो जनरल नॉलेज के सेक्शन को अब हम डिस्कस करेंगे और इसमें हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कैपिटल सिटी ऑस्ट्रेलिया का है ऑप्शन सी के अंदर कैम्ब्रा इज़ द कैपिटल बिकॉज इट वाज चूजन एज एन compromise between Sydney and Melbourne and it is where the government buildings are located. Sydney and Melbourne are bigger cities but not the capital. Next question, who is the known as the father of the Indian Constitution? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar lead the team that wrote India Constitution after independence and he fought for rights of lower caste. Gandhi and Nehru were leaders but not the main writer. नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के सेक्शन में व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लानिट इन आवर सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी, ठीक है, जुपिटर. Jupiter is the biggest planet, much larger than Earth, and it has many moons and a big red spot. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड पाकिस्तान गेन इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 1947. इट वाज क्रिएटेड फॉर पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन इन 1947 एंड India also got independence in the same year and Pakistan was created for Muslims in India.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है AU, ठीक है। AU इज द सिंबल फॉर गोल्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एरम, एंड AG इज फॉर सिल्वर, FE फॉर आयरन, एंड CU फॉर कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, हफीज़ जलंधरी रोट द वर्ड्स फॉर पाकिस्तान एंथम, एंड इकबाल रोट पोएम्स बट नॉट द एंथम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 157, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर है ऑप्शन बी, ठीक है। रिवर नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू अफ्रीका, एंड अमेजोन इज वाइड बट शॉर्टर इन लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन लीड द US in the war for independence, and he became the first president in 1789, and Jefferson and Adams came later. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। तो जापान की करेंसी है ऑप्शन सी के अंदर येन, ठीक है। येन इज़ द मनी यूज्ड इन जापान, एंड yuan चाइनीज, एंड रिंगिट मलेशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कॉन्टिनेंट इज़ द सहारा डिजर्ट लोकेटेड। तो यहाँ पर है ऑप्शन बी अफ्रीका, ठीक है। सहारा इज इन नॉर्थ अफ्रीका, द बिगेस्ट हॉट डिजर्ट, एंड इट कवर्स मेनी कंट्रीज लाइक इजिप्ट एंड लीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। पेंसिलिन डिस्कवर्ड की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फाउंड पेंसिलिन by accident in 1928, and it is a medicine to fight bacteria. It saved many lives in wars. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट एट ओवर 8,800 मीटर्स, एंड इट इज़ इन द हिमालयन बिटवीन नेपाल एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज ऑफ 2025। तो यहाँ पर है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एंटोनियो गुतेरेस इज द UN लीडर सिंस 2017, एंड ही इज़ फ्रॉम पुर्तगाल एंड वर्क्स फॉर पीस। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल फ्लावर है पाकिस्तान का जैस्मिन, एंड जैस्मिन इज़ अ पाकिस्तान फ्लावर सिंबल ऑफ ब्यूटी, एंड इट स्मेल्स नाइस एंड इज़ यूज्ड इन परफ्यूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, इन विच ईयर डिड द टाइटैनिक सिंक। तो ये डेट है 1912। टाइटैनिक सिंक इन 1912 आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग, एंड इट वाज अ बिग शिप थॉट टू बी सेफ, मेनी पीपल डाइड इन द कोल्ड ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। तो यहाँ पर जो है वो वेटिकन सिटी, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी के अंदर। वेटिकन सिटी इज़ tiny and inside Rome, Italy. It is where the Pope lives, and Monaco is a small but bigger. नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, हु पेंटेड द मोनालिसा। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी, लिनार्डो डी विंची पेंटेड मोनालिसा इन द 1500, एंड इट इज़ फेमस फॉर हर स्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, ठीक है। पेरिस इज़ फ्रांस कैपिटल, नाउन फॉर ईफल टावर, एंड इट इज़ अ बिग सिटी विद हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लानट इज़ नाउन एज द रेड प्लानट। तो रेड प्लानट जो है वो मार्स को कहते हैं। मार्स इज़ रेड बिकॉज ऑफ आयरन डस्ट ऑन इट्स सरफेस, एंड इट हैज़ 2 मून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट PM आफ्टर 1947, एंड जिन्ना वाज गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ। तो लार्जेस्ट ओशन है अर्थ के ऊपर पैसिफिक ओशन, ठीक है। Pacific Ocean is the biggest, covering much of Earth, and it touches Asia and America. Atlantic Ocean is second. Next question, in which year was the United Nations founded? तो यहाँ पर है ऑप्शन ए 1945. UN started in 1945 after World War II, and it helps countries work together. Headquarters in New York. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। तो केमिकल फार्मूला है वाटर का H2O, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ रोमियो एंड जूलियट। तो रोमियो एंड जूलियट का ऑथर है विलियम शेक्सपियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है ऑप्शन सी के अंदर मार्खोर, ठीक है। मार्खोर इज़ द वाइल्ड गोट इन पाकिस्तान माउंटेन्स, एंड इट हैज़ बिग हॉर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नाउन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं जापान को, ठीक है। जापान is called it because sun rises first there, and it is in the east. Flag has sun. Next question, what is the speed of light in vacuum। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो टेलीफोन जो है वो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने ईजाद किया था and made the first phone in 1876 and it changed how people talk. Edison made light bulb. Next question है 179. What is the capital of India? तो इंडिया का कैपिटल है ऑप्शन डी न्यू दिल्ली is India capital since British times and Delhi is the area. New Delhi is the city part. Mumbai is for business. Next question है which element has the atomic number 1? तो यहाँ पर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज नंबर 1 lightest element and it is in water and stars and helium is 2. Next question 181. In which year did World War II end? तो वर्ल्ड वार 2 एंड हुई 1945 के अंदर. World War II ended in 1945 with Japan surrender and it was a big war with many countries. Started in 1939. Next question. What is the largest mammal in the world? तो यहाँ पर है ऑप्शन बी ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल लिव्स इन ओशन एंड इट इज लॉन्गर देन एलिफेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट मैन टू टॉक ऑन द मून? तो यहाँ पर है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्टेप्ड ऑन मून इन 1969. देन व्हाट इज द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? तो यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है ऑप्शन सी पाउंड स्टर्लिंग in is UK money, euro is in Europe, dollar in US and it has coin picture. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच रिवर फ्लोज थ्रू इजिप्ट? तो यहाँ पर है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है रिवर नाइल. नाइल फ्लोज थ्रू इजिप्ट टू द सी इट हेल्प्ड ओल्ड इजिप्शियंस फार्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड अमेरिका? तो यहाँ पर है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है क्रिस्टोफर कोलंबस फाउंड अमेरिका इन 1492 एंड ही वाज फ्रॉम इटली सेल्ड फॉर स्पेन. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है जो जकोर है वो यानी कि पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है एंड इट इज़ पाकिस्तान हिल्स एंड पीकॉक इज़ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द बर्लिन वॉल बिल्ट? तो यहाँ पर है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 1961. Berlin Wall built in 1961 to divide East and West and it fell in 1989. Next question what is the hardest natural substance on earth? तो यहाँ पर है ऑप्शन सी डायमंड. Diamond is hardest made of carbon and used in rings and tools. So you just completed a strong practice round. Review every wrong answer carefully. Understand the logic, not just the result. Daily focus practice turns average preparation into top performance. So stay disciplined, keep testing yourself, your score will rise.